السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آپ کے لیے ہم ریٹ پری 2025 کے لیے ماڈل پیپر لے کر آئے ہیں۔ آج ہم ماڈل پیپر نمبر 4 کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں آپ لوگ ایک کام کریے گا، آپ اپنی کاپی پین لے کر بیٹھ کے اس میں ایک سے یہ 61 سے لے کے 90 تک جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے کوشچن نمبر لکھ کے، اور پھر آپ اپنے حساب سے اپنا مولیانکن کریں کہ آپ کے کتنے سوال صحیح جاتے ہیں اور کتنے سوال غلط جاتے ہیں۔ صحیح سوال پر آپ غور کر کے اور غلط سوالوں پہ غور کر کے آپ اس میں دیکھیں کہ کون سا ٹاپک آپ کے لیے مشکل ہے یا کون سے ٹاپک میں آپ کو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یا کس کو زیادہ دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ آپ اپنا مولیانکن ضرور کریں جس سے کہ آپ کو امتحان میں آپ کو آسانی ہو۔ تو اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ لوگ اپنا اسکور ضرور بتائیے گا۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں سوال نمبر 61۔ ایک لڑکی کا گیت نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ آپشن نمبر اے اقبال، آپشن نمبر بی اختر شیرانی، آپشن نمبر سی دل ایوبی، آپشن نمبر ڈی محمود سعید۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی اختر شیرانی۔ ایک لڑکی کا گیت اختر شیرانی کی نظم ہے۔ اگلا سوال نمبر 62۔ آج کی صبح روشن ہے، اس جملے میں صبح کیا ہے؟ آپشن نمبر اے اسم، آپشن نمبر بی صفت، آپشن نمبر سی ضمیر یا آپشن نمبر ڈی صفت فعل۔ تو اس سے ریلیٹڈ سوال آپ کے پریویس جو ماڈل پیپر کرا رکھے ہیں 1 2 3 اس میں بھی ایسے سوال پوچھے گئے ہیں اور ان کا صحیح سے جواب بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ صبح جو ہے وہ اسم کی قسم ہے۔ آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہے۔ اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسم کی کون سی قسم ہے صبح، یہ آپ بتائیں گے۔ اس میں کیفیت ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں ذات ہے، جو بھی ہے وہ سب آپ بتائیں گے۔ اگلا سوال نمبر 63۔ ایک پہاڑ کی کوہ میں جا چھپا تھا، میں کون سا فعل ہے؟ ایک پہاڑ کی کوہ میں جا چھپا تھا، اس میں کون سا فعل ہے؟ فعل کسے کہتے ہیں پہلے تو آپ لوگ یہ جانیے۔ فعل کہتے ہیں کسی کام کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہندی میں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کریا۔ فعل بولتے ہیں ہم کسی کام کو۔ تو اس ایک پہاڑ کی کوہ میں جا چھپا تھا میں کون سا فعل ہے؟ فعل مجہول، فعل ماضی، فعل معروف، فعل مستقبل، بتائیں۔ یہاں پہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ سینٹینس کو پڑھ کے اس کو بتانا ہے کہ یہ کس میں ہے۔ تو یہ ہے فعل ماضی میں، یعنی کام کیا جا چکا ہے۔ جا چھپا تھا، ٹھیک ہے، تو تھا کس میں آتا ہے؟ فعل ماضی میں۔ اگلا سوال نمبر 64۔ درج ذیل میں قوم کی جمع ہے قومیں، قوموں، قیوم، اقوام، بتائیں۔ درج ذیل میں قوم کی جمع ہے اقوام، آپشن نمبر ڈی اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال نمبر 65۔ کس کا تعلق تقریری انشاء سے ہے؟ آپشن نمبر اے بیت بازی، آپشن نمبر بی املا، آپشن نمبر سی انشاء، آپشن نمبر ڈی خطوط، بتائیے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے بیت بازی۔ آپ لوگ ان سبھی ماڈل پیپر کی PDF ہمارے ٹیلی گرام چینل جس کا نام ہے اردو ورلڈ کلاسز، جو کہ چینل کا بھی نام ہے، آپ اس سے ڈسکرپشن میں لنک دے دی گئی ہے، وہاں سے آپ اس چینل کو جوائن کر کے اور
जुड़ जाए, जिससे कि आपको PDF और क्लासेस टाइम पर मिलती रहेंगी बिना किसी फीस के। सिर्फ आपको ज्वाइन करना है और PDF डाउनलोड करके उनको रिवाइज करना है। आपको डेली के डेली भी PDF प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि आप क्लास देखने के बाद उसके अगले दिन PDF से उसका रिवीजन आप कर लें और आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। 10 मॉडल पेपर टोटल हैं, आज 4th है, अभी 6 और आपको करा दिए जाएंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 66। तदरीस का वह तरीका जिसमें उस्ताद के बताए हुए पर भरोसा करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए तरकीबी तरीका, ऑप्शन नंबर बी तहलीली तरीका, ऑप्शन नंबर सी इस्तक़राई तरीका, ऑप्शन नंबर डी इस्तखराजी तरीका। बताइए। तो जिसमें उस्ताद के बताए हुए पर भरोसा करना पड़ता है वो है ऑप्शन नंबर डी इस्तखराजी तरीका। अगला सवाल सवाल नंबर 67। वो स्कूल गया, इस जुमले में वो क्या है? इसम है, फेल है, ज़मीर है या मफूल है? बताएं। देखिए, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम ज़मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। लेकिन यहाँ पे हम किसी को अगर हम नाम ले देते कि जैद स्कूल गया, तो जैद इसम हो जाता, लेकिन जैद की जगह हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो स्कूल गया। इस हिसाब से वो क्या हुआ? ज़मीर होता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल सवाल नंबर 68। मुश्किल असबाक की तोसी और तशरीह का आसान और सस्ता तरीका है। तख्त स्याह का इस्तेमाल, किताब पढ़ना, नज़्म व ज़ब्त, उस्ताद का काबिल होना। मुश्किल असबाक की तोसी और तशरीह का आसान और सस्ता तरीका है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए तख्त स्याह का इस्तेमाल। अगर हम मुश्किल लफ्ज़ जो भी होते हैं वो हम तख्त स्याह पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर ही बच्चों को अच्छे से समझा पाते हैं, तो वो तख्त स्याह का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 69। ज़बान की कवायद पढ़ाने का तरीका है। ऑप्शन नंबर ए इस्तक़राई तरीका, ऑप्शन नंबर बी इस्तखराजी तरीका, ऑप्शन नंबर सी मखलूत तरीका, ऑप्शन नंबर डी तीनों ही। बताएं। ज़बान की कवायद पढ़ाने का तरीका है। इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी तीनों ही। तीनों ही कवायद पढ़ाने के लिए ज़बान की कवायद पढ़ाने के तरीके हैं, इस्तक़राती, इस्तखराजी और मखलूत तरीका। अगला सवाल है सवाल नंबर 70 यानी 70। लफ्ज़ अरब का मुतज़ाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए एराब, ऑप्शन नंबर बी हबशी, ऑप्शन नंबर सी अजम या ऑप्शन नंबर डी शामी। यहाँ पे आपसे पूछा है लफ्ज़ अरब का मुतज़ाद यानी कि उल्टा, जिसे हम कहते हैं विलोम। तो अरब का जो सही जवाब है वो है अजम यानी सी अजम अरब का मुतज़ाद लफ्ज़ है। अगला सवाल सवाल नंबर 71। ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी नहीं निकलते वो कहलाते हैं मौजू, महमिल, बेमानी, गैर मानी। बताएं। पिछली क्लास में आपको इसका बताया गया था कि जिसके मानी नहीं निकलते। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था जिसमें हमने पढ़ा था एक लफ्ज़ पानी और वानी।
हम लोग ऐसे आम बोल चाल में बोलते हैं ना, पानी पानी, खाना वाना, उठना उठना उठना, जो भी। तो उसमें क्या होता है, जो ये एक जो लफ्ज होता है पानी, इसे बोलते हैं हम हिंदी में सार्थक लफ्ज, जिसके मानी होते हैं वाणी। इसे हम इसके मानी हम नहीं निकाल पाते, जिसको हम उर्दू में महमिल कहते हैं, और जिसके मानी निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौजू कहते हैं। यहाँ हमसे सवाल में पूछा गया है कि ऐसे अल्फाज जिनका कोई मानी नहीं निकलता, वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे महमिल महमिल अल्फाज कहलाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 72। बात का बतंगड़ बनाना मिसाल है। इसमें सौत की, इसमें आला, इसमें मसगर, इसमें मकबर। बताएं। बात का बतंगड़ बनाना मिसाल है। यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, बात का बतंगड़। देखिए, एक लफ्ज है बात और एक लफ्ज है बतंगड़। ठीक है। तो जो बात होता है वो एक छोटी बात होती है, लेकिन उसका बतंगड़ क्या आता है, बहुत बड़ा चढ़ा के बना देते हैं, तो वो बड़ा रूप हो जाता है बतंगड़। और जो मकबर है जो, वो अकबर और असगर दो लफ्ज होते हैं। अकबर, एक मिनट, एक मिनट, अकबर और असगर दो लफ्ज हैं, जिसमें से अकबर का मानी है बड़ा और असगर का मानी है छोटा। ठीक है। अकबर का मानी है बड़ा और असगर का मानी है छोटा। तो इसमें मकबर यानी बड़ा बनाना, बात का बतंगड़। और इसमें मसगर यानी जैसे हम संदूक का संदूकचा बना दें, तो संदूक तो एक बड़ा हो जाता है, लेकिन संदूकचा छोटा होता है। तो उसमें हम क्या पाते हैं, इसमें मसगर आता है। अगर हम संदूक संदूक से संदूकचा बनाते हैं तो बड़े से छोटे की तरफ आए, यानी मसगर। और यहाँ हमने बात से बतंगड़ बनाया, तो इसलिए मकबर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 73। अगराक का ताल्लुक है ईहाम से, तजाहुल आरिफाना से, मुबालगा से, हुस्न तालील से। बताएं। अगराक का ताल्लुक किससे है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुबालगा से। इसमें आपने पढ़ा होगा अगराक गुलू मुबालगा वगैरह में आते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 74। जमाअती तालीम की खामियों को दूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया है? जमाअती तालीम की खामियों को दूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया है? मंसूबी मंसूबाई तरीका, किंडरगार्टन तरीका, डॉल्टन तरीका, या मॉन्टेवरी तरीका। मॉन्टेवरी तरीका बताएं। जमाती तालीम में जो खामियां होती हैं उनको दूर करने के लिए, तो वो डाल्टन तरीका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 75। जुमले में चीज या शख्स के बारे में कहा जाए उसे कहते हैं जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया, मसनद आलिया, मसनद। किसी चीज या शख्स के बारे में कहा जाए, बताएं। ये सवाल भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने पहले के मॉडल पेपर की क्लास देखी है तो उसमें भी सेम सवाल पूछा गया है। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मसनद आलिया। अगला सवाल, हुस्न तालील वो है जिसमें हकीकी सबब बयान हो, हकीकी सबब बयान ना हो, जिसमें कोई वाकया हो, जिसके कोई मानी ना निकलते हों। तो हुस्न तालील वो होता है जिसमें हकीकी सबब बयान ना हो। ठीक है। यानी जिसमें हम जिस शेर को पढ़ के हमें उसमें ऐसा लगे कि ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता।
تو उसको हम क्या बोलते हैं, हुस्न तालील। इसका एक शेर है मिसाल के तौर पर, उसमें एक शेर इस तरीके से है कि प्यासी जो थी सिपह 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजे फरात की। तो फरात यहाँ पर नदी है कि क्या सर पटक सकती है लहर अपनी? नहीं पटक सकती ना। तो बस वही बात है कि लहर का कोई सर थोड़ी होता है, पर क्या उसमें बात को इस तरीके से बताया गया है कि हकीकी सबब बयान नहीं हो पाता, उसमें हुस्न तालील आता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 77, याए लीन कहलाता है जिस या से कब्ल ज़बर हो, जिस या के बाद ज़ेर हो, या से कब्ल जज़म हो, या जिस या से कब्ल अलिफ हो। बताएं। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिस या से कब्ल ज़बर हो उसे याए लीन कहलाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 78, मुझे भारत मुझे भारत भात धर्म और धूल वगैरह मिसालें हैं। हाय मलफज, हाय मखलूत, हाय मुख्तफा, इनमें से कोई नहीं। मुझे भारत भात धर्म और धूल, इसमें जो मिसालें हैं ये हैं हमारे, एक मिनट, हाँ, तो 78 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाय मखलूत की मिसालें हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 79, मुसम्मती आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हुरूफ इल्लत, ऑप्शन नंबर बी हुरूफ मुरक्कब, ऑप्शन नंबर सी हुरूफ सही, ऑप्शन नंबर डी हुरूफ अत्फ। मुसम्मती आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, हुर्फ इल्लत। अगला सवाल, मुसम्मते और ये जो सवाल है आप इसमें मुसम्मते और मुसव्वते में जो अल्फाज आते हैं वो लोग आप कमेंट में बताइएगा। मंदरजा ज़ेल शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? ऑप्शन नंबर ए, कब्र के ऊपर लगाया नीम का उसने दरख्त, बाद मरने के मेरी तो कब्र आधी रह गई। बताएं इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? ऑप्शन नंबर ए, तजाउल आरफाना, ऑप्शन नंबर बी हुस्न तालील, ऑप्शन नंबर सी मिरातुन नज़ीर, या ऑप्शन नंबर डी इहाम। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, इहाम। इसमें सिनत इस्तेमाल की गई है और सिनत इहाम का जो मानी होता है वो होता है वहम में डालना। अगला सवाल है सवाल नंबर 81, जिस हुर्फ पर रफा हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मजमूम, ऑप्शन नंबर बी मरफू, ऑप्शन नंबर सी मजरूर, या ऑप्शन नंबर डी मकसूर। बताइए। जिस हुर्फ पर रफा हो उसे क्या कहा जाता है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी मरफू। अगला सवाल, सवाल नंबर 82, ख़त के इख्तिताम के बाद दुआया और इख्तितामिया कलमा सफ़ा में लिखा जाता है। दाईं तरफ, बाईं तरफ, दरमियान में, कहीं नहीं। जब हम ख़त लिखते हैं और उसका इख्तिताम यानी खात्मा करते हैं तो उसके बाद दुआया और इख्तितामिया कलमा सफ़े में कहाँ लिखा जाता है, ये पूछा है।
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाएं तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 83। ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 6-6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुसब्बा, ऑप्शन नंबर बी मुसम्मन, ऑप्शन नंबर सी मतआ, या ऑप्शन नंबर डी मुसद्दस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं और 6 मिसरे, हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ये नज़्म की हैयत होती है जिसमें नज़्म लिखी जाती है और इसमें हर बंद में 6-6 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 84। उर्दू अदब की सबसे कदीम सिनफ किसे तस्लीम किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अफसाना, ऑप्शन नंबर बी नॉवेल, ऑप्शन नंबर सी ड्रामा, ऑप्शन नंबर डी खाका। बताइए इनमें से उर्दू अदब की सबसे कदीम सिनफ किसे तस्लीम किया जाता है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ड्रामे को उर्दू अदब की सबसे कदीम सिनफ तस्लीम किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। इन चारों में ड्रामा है सबसे कदीम सिनफ। आपको कुछ और अलग भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 85। बच्चों का निसाब तरतीब देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की नफ्सियाती और दिलचस्पी, मुआशियात, सियासियात, समाजियात। बताइए। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की नफ्सियात और दिलचस्पी। अगला सवाल, सवाल नंबर 86। तदरीस के बुनियादी मकासद बोलना और लिखना सिखाने की नौइयत है। ऑप्शन नंबर ए दाखिली, ऑप्शन नंबर बी खारजी, ऑप्शन नंबर सी अमली, ऑप्शन नंबर डी नजरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी अमली। अगला सवाल, सवाल नंबर 87। शादाब के मानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी बंजर, ऑप्शन नंबर सी हरा भरा, ऑप्शन नंबर डी खूबसूरत। शादाब के मायने। शादाब का मानी होता है हरा भरा। ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 88। चांद का मुतरादिफ नहीं है। मुतरादिफ बोलते हैं पर्यायवाची को। ऑप्शन नंबर ए कमर, ऑप्शन नंबर बी महताब, ऑप्शन नंबर सी खुर्शीद, ऑप्शन नंबर डी माह। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी है आपको पता लगाना। ये जो 3 ऑप्शन है कमर, महताब और माह, ये तीनों ही चांद को कहा जाता है। खुर्शीद है वो इसका सही जवाब है। ये चांद का मुतरादिफ नहीं है क्योंकि ये सूरज का मुतरादिफ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 89। मंदरजा झेल में से इसमें जमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फौज, ऑप्शन नंबर बी भीड़, ऑप्शन नंबर सी ढेर, ऑप्शन नंबर डी वतन। बताइए। इसमें जमा आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया था। इसमें फौज, अंजुमन, ढेर, भेड़ है, अंजुमन और कतार। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कतार, ये जो ऐसे लफ्ज होते हैं वो इसमें जमा कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे वतन लफ्ज है वो इसमें जमा नहीं है।
तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वतन। अगला सवाल और एक लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 90। शबे दराज का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए काली रात, ऑप्शन नंबर बी लंबी रात, ऑप्शन नंबर सी सितारों भरी रात, ऑप्शन नंबर डी अंधेरी रात। बताइए। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, लंबी रात। शबे दराज का मतलब है लंबी रात। यहाँ आज की जो क्लास है उसके सवाल खत्म होते हैं, और उम्मीद है आपको सवाल पसंद आए होंगे। अपना जो स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये जो मॉडल पेपर हैं इनका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप फ्री प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। और देखिए, थ्योरी तो हर जगह आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे आजकल सब मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपको कोई एमसीक्यूज और आपको कोई मॉडल पेपर फ्री नहीं कराएगा, मुझे यकीन है इतना अपने लोगों पर जो भी कॉम के रहबर हैं वगैरह वगैरह। तो आप लोग इसे इन क्लासेस को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।